Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah Almighty, the most compassionate and the most merciful. The research that I have made on the topic is homosexuality in Pakistan, a religious paradox. This topic is basically a taboo. taboo हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि लोग ईजी नहीं समझते डिस्कस करना उसको सबके सामने, और वो वियर्ड या ऑकवर्ड फील करते हैं इस चीज़ को सबके सामने डिस्कस करना. सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ टॉपिक. हम सबको पता है हम इसको पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, बट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इस चीज़ को शेम समझते हैं, शर्म समझते हैं इस चीज़ को डिस्कस करने में, जो कि नहीं होनी चाहिए. वी हैव टू डिस्कस दीज टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस, टू प्रोवाइड अवेयरनेस in the society to the people so that they can understand what are these things. Our new generation can understand such things, okay, what are these things and how to deal with these things. So the topic is homosexuality in Pakistan, a religious paradox. Let's come towards the table of content that include abstract introduction to homosexuality and religions, Islam, Hinduism, Christianity, Buddhism, literature review, facts, findings and discussion, historical date and conclusion. The abstract or the summary of my report includes the increasing homosexuality trend in Pakistan, or we can say in the whole world. The homosexuality के जो trend है वो increase होता जा रहा है day by day. The survey was conducted to know the public point of view. Analysis taken from the survey is reported. The research provides information about homosexuality according to different religions and their behavior towards relationships between same-sex partners that become prominent nowadays. Trends in public opinions towards gender support for legal recognition of sex couples are discussed. Some consequences of current policies are also discussed. For this purpose, we have provided the stats. तो होमोसेक्सुअलिटी बेसिकली होती क्या है, हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है. हम जो ट्रांसजेंडर्स हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, इन सबको एक ही जैसा समझते हैं कि ये सब एक चीज़ है. ये सब एक नहीं है. इस रिपोर्ट के थ्रू आपको काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी कि ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअल, लेस्बियन, गे, इन सब में क्या डिफरेंस है. सो स्टार्टिंग विद होमोसेक्सुअलिटी. व्हाट इज़ होमोसेक्सुअलिटी? Homosexuality refers to the attraction or sexual behavior between people of the same sex or to a sexual orientation. Homosexuality is a Greek and Latin hybrid. Latin hybrid है, Greek और Latin का hybrid है ये, with homos used for men in Homo sapiens. There is an increased trend of homosexuality nowadays. The number of people identifying as homosexual and the proportion having homosexual experiences are in quantities, creating difficult situations for society. In 2006, a big size of population anonymously reported some homosexual feelings, few of them identifying as homosexuals. There is a term LGBTQ. There is no awareness about this, क्योंकि हम इस चीज़ को जस्ट इस तरह कंसिडर करते हैं कि जी इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसको पेरेंट्स के सामने डिस्कस करेंगे तो जी पेरेंट्स क्या कहेंगे, इसको फ्रेंड्स में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे. We have to know about these things. And what is LGBTQ? L stands for lesbian, G stands for gay, B stands for bisexual, T transgender and Q queer. These 5 terms are known as LGBTQ, जिसको हम समझते थे कि ट्रांसजेंडर और बायसेक्सुअल, क्वेयर, लेस्बियन ये सब एक हैं. ये एक नहीं है. देयर आर 5 डिफरेंट टर्म्स जो अंडर आती हैं LGBTQ के, जो कि रन कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके होल थ्रू इसको जो है वो रन कर रही है. टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब people who have romantic sexual desires for people of all gender. ये LGBTQ का फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा इस स्लाइड में. ये इनका फ्लैग है जिसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क कर रही है, और दे हैव देयर प्रॉपर फ्लैग. उसके साथ फ्लैग के साथ ये लोग कर रहे हैं इस चीज़ को प्रमोट. टर्म्स लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर होता क्या है? लेस्बियन टर्म एज अ वुमन सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर वुमेन. वुमेन किस से अट्रैक्ट हो रही है, दैट इज लेस्बियन. गे मैन की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज गे. बायसेक्सुअल टर्म्ड एज एन अट्रैक्शन टू मोर देन वन जेंडर, जिसको एक से ज्यादा अट्रैक्शन हो, एक जेंडर को दूसरे किसी मोर देन एक जेंडर से उसको अट्रैक्शन हो, दैट इज बायसेक्सुअल. ट्रांसजेंडर अ पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी इज ऑपोजिट ऑफ देयर असाइंड सेक्स. ट्रांस मैन और वुमेन जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं, दे आर ट्रांसजेंडर्ड. क्वेयर क्या होता है? अ पर्सन हु सेक्सुअली और जेंडर change over time or not fit into any pre-existing gender identities, यानी कि जो कि अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना जेंडर कर लेते हैं, दैट इज क्वेयर. दैट टर्म इज क्वेयर. इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो रिपोर्ट में यूज हुई, दैट इज एज कॉन्सेंट, सोडोमा लॉ, जेंडर आइडेंटिटी एंड होमोफोबिया.
एज कंसेंट, एज प्रोवाइडेड बाय लॉ फॉर इंगेजिंग इन कंसेंटिंग सेक्सुअल रिलेशन, कि कौन सी एज होनी चाहिए कि जो है अलाउड हो, कि सेक्स अलाउड हो, वो एज कंसेंट है. सोडोमी लॉ, लीगल प्रोविजंस क्रिमिनलाइजेशन सेम सेक्स रिलेशन, के अब प्रॉपर ये क्रिमिनल है सेम सेक्स रिलेशन जो है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा लॉ बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड सोडोमी लॉ. जेंडर आइडेंटिटी रेफर्स टू अ कंपेलिंग सेंस दैट वंस जेंडर आइडेंटिटी इज नॉट कंफर्मिटी विद द फिजियोलॉजिकल characteristics of the sex is born with. होमोफोबिया क्या होता है? irrational fear of attraction of a person for same gender, यानी कि जी जो हमारा सेम जेंडर है लोगों को खौफ होता है उससे, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस से गुजरे होते हैं वो, तो उन्हें अपने ही जेंडर से जो है डिफरेंट रीजंस की वजह से जो है काफ़ी फियर आ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड होमोफोबिया. जो मेन कंसेंट था हमारी इस रिपोर्ट का, रिसर्च का, वो था रिलीजियस फंडामेंटल्स की. डिफरेंट रिलीजन्स हम इसके बारे में क्या कहते हैं. So starting it with Islam, that is, according to Islam, Quran dismisses homosexuality entirely. We have known about Qawm Lut. Qawm Lut पे ये अजाब दिया गया था, वो अल्लाह ताला की हदों को पार कर चुके थे, तो अल्लाह ताला ने अजाब दिया था. ये उनकी कौम पे अजाब आया था कि वो होमोसेक्सुअल्स हो गए थे, वो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और उनमें ये जो है अल्लाह ताला ने उनको अजाब के तौर पे दिया था. दैट जो कुरान में साफ साफ मेंशन है, हमारी कुरान में, हमारी उसमें किताब में प्रॉपरली मेंशन्ड है पूरा वाक्या. ठीक है. कुरान डिसमिसेस होमोसेक्सुअलिटी एंटायरली. हमारे जो है रिलीजन में ये इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हम इसको प्रमोट करें. किस तरह कोई कहीं से हमें कोई नुक्ता, कोई स्पॉट नहीं मिलता कि हम इसको प्रमोट करें. सो वाई सो कि ये पाकिस्तान में प्रमोट हो या ये किसी इस्लामिक कंट्री में प्रमोट हो. According to Christianity, Bible says homosexuality is a sin. हमें पता है बाइबल जो बाइबल that is most of the things that related to कुरान, उसमें कुरान काफ़ी कुछ उसमें निशानियाँ जो बताई गई थी हमारे पैगम्बरों के आने की, तो that is quietly related to हमारी जो किताब है कुरान उससे, तो वो इसको डिनाई करते हैं. that is a sin, वो कहते हैं गुनाह है. According to Hinduism, there is a controversy on this topic. मैंने हिंदुत्वा पढ़ी थी, मैंने करा समंतरा पढ़ी थी. उनकी डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो कंट्रोवर्सी में आता है. कुछ उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ इसको डिनाई कर रहे हैं. बुद्धिस्ट क्या, देयर इज अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस टॉपिक बट इट वाज मेड लीगल इन थाईलैंड इन 1956. बेसिकली थाईलैंड जो है वो बुद्धिस्ट हैं, ज़्यादातर उधर बुद्धिस्ट हैं, तो इस चीज़ को उस वक्त तक तो नहीं था कि कंसेंट के इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, बट इन 1956 इसको लीगल करार दे दिया गया कि ये प्रमोट कर सकते थे. अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम डज नॉट प्रमोट होमोसेक्सुअलिटी. पिग्स आर सेड टू बी हराम एज दे आर होमोसेक्सुअली बाय नेचर. पिग्स जो है हमें पता है कि हराम है. क्यों हराम है हमें खाना? क्योंकि वो जो है हमें पता है वो होमोसेक्सुअली प्रोड्यूस किए गए हैं, वो होमोसेक्सुअल हैं बाय नेचर. ठीक है. सो वो हमारे लिए जो है वो चीज़ हराम करार की गई अल्लाह ताला की तरफ से. He has only, there is a ayat that is quoted here, तर्जुमे के साथ है, उसकी ट्रांसलेशन के साथ है. He has only forbidden to you dead animals, blood, the flesh, swine, and that which has been dedicated to other than Allah. But whoever is forced by necessity, neither desiring nor transgressing its limits, there is no sin upon him. Indeed, Allah is forgiving and merciful indeed. कुरानिक वर्सेस हैं. कुरान में होमोसेक्सुअल्स को रेफर किया गया था कौम लूत की तरफ से. कौम लूत से क्वेश्चन किए गए थे, अल्लाह ताला ने कुरान में क्वेश्चंस किए हैं. हाउ कैन यू लस्ट फ्रॉम मीन्स ऑफ ऑल क्रिएचर इन द वर्ल्ड एंड लीव दोज हुम गॉड हैज क्रिएटेड फॉर यू. जब अल्लाह ताला ने एक चीज़ बना दिया आपके लिए, आपका पार्टनर बना दिया, जोड़ा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया है इस दुनिया में, तो तुम कैसे मेल का लस्ट कर सकते हैं, फीमेल को लस्ट कर सकती हैं एज योर मेट्स. यू आर रियली गोइंग बियॉन्ड ऑल लिमिट्स. तो ये सारा कुछ क्या था, लिमिट्स जो थी अल्लाह ताला ने जो हदूद लगाई थी उसको क्रॉस करना था. और प्रॉफिट मोहम्मद एड्स Sallallahu Alaihi Wasallam adds, doomed by God who does what Lut's people did, means homosexuality. जो homosexuality करेगा, जो इस तरफ इस गुनाह की तरफ जाएगा, उस अल्लाह ताला की लानत है उस शख्स पे, उस इंसान पे. There are some hadiths जो के कोट की गई हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, the Prophet also comments that no man should look at the private parts of another man, and no man should look at the private parts of another woman, and no two men sleep in bed under one cover, and no two women sleep under one cover. In his last speech, known as the farewell sermon, the Prophet added a last condemnation of homosexuality, saying, whoever has intercourse with a woman and penetrates her rectum, or with a man or with a boy, will appear on the last day shrinking worse than a corpse. People will find him unbearable until he enters hellfire, and God will cancel all his good deeds.
Scholars of Sharia's law, Islamic law, interpret homosexuality to be not merely a sin but a crime as well. According to Christianity, according to Bible, homosexuality is a sin, as I have earlier told you कि sin है. हम पढ़ के जैसे कि बाइबल इसको गुनाह करार दे रहा है. The passage of homosexuality mostly described in Torah Leviticus. इनकी बुक है जो जिसमें तौरात में जो इनकी जिसको ये फॉलो करते हैं, तो उसमें इसको जो है वो प्रॉपरली जो है गुनाह करार दिया गया. और एक उनकी वर्स है उसमें से, डू नॉट लाई विद अ मैन एज वन लाइज विद अ वुमन, दैट इज डिटेस्टेबल. Leviticus 18:22. In Leviticus further उसके आगे बताई गई हैं कि God gave them over to shameful lust, even their women in exchange natural sexual relations for unnatural ones. वही चीज़ें हैं जो कि हमारे कुरान में जिस चीज़ से मना किया गया है, वही बाइबल जो है वो इनको लेविटिकस जो है इनकी तौरात इसमें मना फरमाया गया है. तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कैसे इजी है या कैसे इस चीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं. अवेयरनेस के तौर पे प्रमोट करना इज़ अनदर थिंग, लेकिन अगर हम इसको ऐसे प्रमोट करें कि इसका लॉ पास करें कि जी मेल हो सकते हैं साथ फीमेल हो सकते हैं, तो दैट इज़ अगेंस्ट जो है अल्लाह ताला की लिमिट जो हम लगाई हैं उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म बात करते हैं तो कंट्रोवर्सी है, जैसे कि ऑलरेडी बताया गया आपको. इनकी कुछ बुक्स में इसको अलाउ किया गया, कुछ बुक्स में इनको जो है इनके नहीं अलाउ. इन भगवत गीता कृष्णा स्टेट्स, आई एम इक्वल टुवर्ड्स ऑल मैन बीइंग्स, नो वन इज हेटेड बाय मी एंड नो वन इज बिलवड दोज हु वर्शिप्ड. इसने इस बुक में जो भगवत गीता है कृष्णा ने इस चीज़ को अलाउ किया. इट मीन्स होमोसेक्सुअलिटी. कमा सुत्रा ने इस चीज़ को क्या जो है वही एक्सेप्ट किया, बोथ मैन एंड वुमेन एंगेजिंग इन द होमोसेक्सुअल एक्ट्स. यानी कि जी अगर वो है इस तरह से इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो अलाउ है. इसी तरह कमा सुत्रा ने इस चीज़ को अलाउ किया. विष्णु मोहिनी अवतार जो इनकी जो हिस्टोरिकल एक चीज़ है, विष्णु मोहिनी नॉट के दो लोग नहीं हैं. ये विष्णु मोहिनी जो है वो एक ही जो है इंसान था जो कि एट टाइम्स वो फीमेल एक्ट करता था और एट टाइम्स वो मेल एक्ट करता है, एंड ही और शी इवन गॉट प्रेग्नेंट. सो ये इनके जो है इसमें इनके कस्टम्स और बिलीव्स इस तरह के हैं, तो हिंदुत्व में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया. तो जो है हम इसको कंट्रोवर्सी में लेते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि जो है ये इस तरह से क्लियर नहीं है हमारा कि इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि नहीं. कुछ प्रमोट करते हैं और कुछ नहीं प्रमोट करते. अकॉर्डिंग टू इंडियन पैनल कोड, लीगल एक्शन जो था वो बहुत ज़रूरी होता है कहीं के किस जगह पे जब नेचर के अगेंस्ट जाया जाए. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पैनल कोड जो था इन 1860 सेक्शन 377 वाज ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर. यानी इस चीज़ को फिर एक जुर्म करार दे दिया गया था कि ये जुर्म है करना, बट स्टिल जो है उनकी जो यूथ है वो इस चीज़ को कहती है कि प्रमोट किया जाए. अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म इन 1956 थाईलैंड होमोसेक्सुअलिटी वाज लीगलाइज्ड. इसको लीगल किया गया था कि लीगल, और सिमिलर जो है जो इसमें की टॉलरेंस थी वो जापान और चाइना में इस चीज़ को देखा गया था कि चाइनीज़ बुद्धिज्म में ये देखा गया था कि अलाउ किया जा रहा था. दलाई लामा एक बुद्धिस्ट थे, स्पिरिचुअल लीडर हैं वो. उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो कहा है कि अगर किसी इंसान का अगर कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, तो वो जो है अगर इस तरह की हरकतें करता है तो वो अलाउ है. हाउ इट कैन बी अलाउड? इट इज़ नॉट अलाउड, चाहे उसका कोई रिलीजन है या नहीं है. लिटरेचर रिव्यू की तरफ चलते हैं. 80 कंट्रीज थे जिन्होंने वर्ल्ड मेंटेन लॉज जिसके थे और विच मेक होमोसेक्सुअलिटी इलीगल बनाया गया था इस चीज़ को. ठीक है कि 80 कंट्रीज थे अराउंड द वर्ल्ड जिसमें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था. LGBTQ इक्वालिटी मांगती है, ठीक है, उनकी इक्वालिटी होनी चाहिए, बट इस चीज़ को प्रमोट करना जिस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं कि सेक्सुअली डिज़ायर्स वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस चीज़ को प्रमोट करना ये अगेंस्ट है. तो इस चीज़ पे मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स जो हैं वो कंट्रोवर्सी नहीं ला रहे, जैसे हिंदुत्व ला रहा है या हिंदुज़म ला रहा है. तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे रिलीजन्स हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जैसे कि ऊपर आप देख के आए. स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है फीमेल्स टुवर्ड्स फीमेल्स एंड मेल्स टुवर्ड्स मेल्स. स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जो लेस्बियंस है उन्होंने काफ़ी जो है डिस्क्रिमिनेशन देखी है. तो इस चीज़ को वो जो है हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो अपना जो है फ्लैग बनाया हुआ है और उन्होंने उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहे हैं कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए.
مائٹ بھی ان کا یہ جو ہے وہ نہ ہو، انٹینشن نہ ہو کہ جس طرح سے ہم اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہوموسیکچول ہیں، ہوموسیکچول اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہ رہے ہوں کہ ایز اے جابس ان کو چاہیے، رائٹس چاہیے، ایز اے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے سوسائٹی میں، ایکسیپٹ ان کو ایز اے سنگل پرسن کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے وہ رہنا چاہتے ہیں دیٹ دے ہیو بی جیسے کہ ایک مین اور وومین رہتے ہیں یا رہ رہے ہیں اس طرح سے رہنا چاہیے، یا دے ہیو کڈس، تو اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں. اور اس میں لٹریچر ریویو میں انڈین گورنمنٹ کا بتایا گیا لینڈ مارک ڈیسیژن واز میڈ ٹو ایبولش دا لا دیٹ کرمنلائزز ہوموسیکچوالٹی. ان یو کے میں بتایا گیا Partnership Act legalized the same-sex unions in 2004, but people are facing homophobia in their everyday life. Zambia, in the case of Zambia, Suriname boys in New Guinea who ingest semen of older males to aid in their maturation, this is disputed whether this is best understood as sexual act at all. Facts. There are some of the facts that are discussed. Homosexuals are subject to death penalty in 12 countries in the world. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے کہ جو ہوموسیکسولز ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، ڈیتھ پینلٹی جو ہے ان کے لیے ہے 12 کنٹریز میں اگر وہ اس طرح کا کوئی سین کرتے ہیں. سم فارمز آف ریکگنیشن آف سیم سیکس پارٹنرشپ ایگزسٹ ان 10 کنٹریز. 10 کنٹریز میں 30 کنٹریز اور پروونسز لیسبینز، گے اینڈ بائی سیکسوals are subject to a discriminatory age of consent in more than 40 states around the world. Same sex acts are illegal. Findings in discussion تھی یہ آپ کے سامنے ہے. فائنڈنگ ان ڈسکشن ہوموسیکسوالٹی شوڈ بی پروموٹڈ. اتنے % ایگری کرتے ہیں. دیر آر سم کوسچنز جو کہ ہم نے اپنے ایریا میں جہاں پہ ہم تھے ہم نے فل آؤٹ کروائے تھے کوسچنیئرز بنا کے، اس کے اکارڈنگ پھر ہم نے ڈسکشن کی تھی. ہسٹوریکل ڈیٹس ہیں کچھ جو کہ ہمیں دکھاتی ہیں، شو کرتی ہیں ورلڈ وائڈ کہ کہاں ہوموسیکسوالٹی کو پروموٹ کیا تھا کہاں نہیں. 1857 میں جو تھا فرسٹ ٹائم جو ہے گے پرسن جو ہے وہ جو پبلکلی اس نے اسپوک آؤٹ کیا تھا کہ جی ہمارے رائٹس ہونے چاہیے. اور پھر اس کے بعد 1869 میں فرسٹ پبلش یوز آف دا ٹرم ہوموسیکسوالٹی، جو ٹرم تھی جو کہ گریک اینڈ لیٹن ہائبرڈ ہے، وہ 1869 میں انٹروڈیوس کی گئی تھی. 1897 میں بل میگنس نے فاؤنڈیڈ دیٹ سائنٹیفک ہیومینٹیرین کمیٹیز ورلڈز فرسٹ آرگنائزیشن. اس کی آرگنائزیشن بنی تھی انٹالرنس آف ہوموسیکسوئلز 1897 میں. 1869 میں کیا ہوا تھا جی، Stonewall Rebellion started on the night of 27 or 28 June in New York City. It becomes a reference point بنا تھا 1969 میں LGBTQ موومنٹ کا ورلڈ وائڈ. 1974 میں جی کیا ہوا تھا، the first international gay rights کانفرنس بنی. جب آپ کو پتا ہے کسی چیز کا ریفرنس پوائنٹ بن جائے تو اس کی کانفرنسز جو ہیں وہ فرسٹ اسٹیپ ہوتی ہیں ٹورڈز جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو جو انٹرنیشنل گے رائٹس کانفرنس تھی وہ ہوئی تھی ایڈنبرگ اسکاٹ لینڈ میں 1974 میں. اینڈ ایٹ دی اینڈ 1989 میں ڈنمارک از دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ٹو گیو لیگل ریکگنیشن ٹو دا سیم سیکس پارٹنر اور کپل. تو جی ہمارے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. دیٹ از دا اٹریکشن اینڈ دا careful romantic behavior among people are the basic reason of homosexuality. The person related to these types of acts are not able to determine their priorities accurately. Homosexuality is immutable in nature. The absence of legal prohibition promoting the homosexuality in our society. Majority does not allow homosexuality in our society. Islam strictly forbid homosexuality. Prohibition of flesh is evidence in nature. Islam set a code of life for all of us. By living in our limits, we can enjoy a happy and safe life. Everything is a limit. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہر چیز کی لمٹ ہے، تو ہمیں اس لمٹس کو کراس کریں گے تو obviously we get harmed. There is a flag that represents LGBTQ organization. Thank you so much. If you have any kind of question you can ask.